Good morning, students. So, welcome to once again online final class by Rohit sir. Students, in our today class, we are going to discuss about in detail the paintings of our second chapter, Pahadi miniature paintings of Pahadi miniature. Students, in this class, in our today class, we are going to discuss the first painting in detail, which is the title or the name of the painting is Krishna with Gopis. So here you can see the image of the painting of Basoli. So first of all, title, the title of the painting is Krishna with Gopis. So the name of the painter means who painted this painting. The painter name is Manako. You have to recognize the name of the painter with this painting. And sub school. So this painting belonged to Basoli School of Miniature. And the next one is medium and technique. So keep in mind one thing, that all our miniature painting has single technique. So watercolor in tempera on handmade paper. Tempera is a technique in which grinding colors are mixed with gum or egg yolk. So next one is subject matter. You all of you know that subject matter means the painting which in our first look says, means what the painting express. Okay, so the subject matter in of this painting is the horizontal painting is an illustration. Illustration means a type of story in which there are no words, only the story has shown with the help of images. So here the illustration work from the Geet Govinda series by Jayadev have been depicted very beautifully with the help of painting. So this painting also one of the part of the illustration work. So this horizontal painting is an illustration from the Geet Govinda series of Jayadev. It deals with the legend and plays of Radha and Krishna. So it says that the painting deals with the legend stories of and play roles of Radha and Krishna, symbolizing what these in this painting the two, a hero and heroine, or male and female character shows they symbolizing soul devotion to God. Here the artist has shown Krishna as a god and the Radha as soul. Okay, so now we discuss about composition arrangement. So students, keep in mind one thing, you have to discuss composition arrangement in which you can write the characters, how many figures, colors, dress up, जितना भी आर्टिस्ट ने यहाँ पे पेंटिंग में दिखाया है, यू कैन राइट ऑल द थिंग्स अबाउट द पेंटिंग. कंपोज कैसे कंपोज किया है. सो इन दिस पेंटिंग 8 गोपीज आर शोन. सो हाउ मेनी गोपीज यू कैन count 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 gopis are shown adorning Krishna. Okay, so one gopi is sitting on her knees. एक गोपी जो है वो आप देख सकते हैं मजेंटा कलर का, ठीक है, ड्रेस में है और अपनी नीज की ओर बैठी हुई है. एंड होल्डिंग कृष्णा वाइल द अदर, ठीक है, और दूसरे से अपने, ठीक है, और उसने अपने कृष्णा को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है. वाइल द अदर वन इन फ्रंट ऑफ हर टचिंग कृष्णा फीट, और जबकि दूसरी जो है उसी के सामने है, वो कृष्णा के पाँव को टच कर रही है. वन ऑफ द गोपी इज स्टैंडिंग विद द
फोल्डेड हैंड्स ऑन द राइट। एक राइट पे जो है गोपी दिख रही है जिसने अपने हाथ फोल्ड किए गए हैं विद हर अटेंडेंट, और उसके साथ उसकी सखा भी है, अटेंडेंट भी है, होल्डिंग ए राउंड फैन बिहाइंड हर, और उसके पीछे उसने राउंड फैन जो है वो पकड़ के रखा हुआ है। टू गोपीज आर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। अब लेफ्ट की साइड की बात करें तो टू गोपीज आर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पे दो गोपीज खड़ी हैं और टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रही है। वन एट द लास्ट होल्डिंग ए चारू, ठीक है। और एक जो सबसे पीछे दिख रही है हमें, उसने क्या पकड़ा हुआ है, जो लेफ्ट साइड में चोरी, ठीक है। चोरी मीन्स हाथ में जो हिला, कुछ भी आगे पीछे आपने देखो व्हाइट कलर की, इसको चोरी बोलते हैं, ठीक है। सो कृष्णाज क्राउन, अब कृष्णा के मुकुट की बात की जाए, इज डिजाइंड विद फिगर्स एट द टॉप ऑफ द फीमेल फिगर्स आर, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है कि कृष्णा को जो क्राउन है उसको डिज़ाइन किया गया है ये, और इस तरह से दिखाया गया है ताकि उसके आगे पीछे सब जो है गोपीज दिखी, ठीक है। फिगर्स आर शोन विद ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स, ठीक है। और जो ये फीमेल फिगर्स हैं उनको भी क्या दिखाया गया है, ये ऑर्नामेंट्स पहने हुए दिखाया गया है, ठीक है। नेकलेस हो गए, इयररिंग्स हो गए, इयरिंग्स हो गए। इन दिस पेंटिंग द ह्यूमन फिगर्स बैकवर्ड स्लोपिंग फोरहेड, ठीक है। अब जो ह्यूमन फिगर है इनका जो ये फोरहेड है वो स्लोपिंग में है, ठीक है। बैकवर्ड स्लोपिंग, पीछे की तरफ स्लोप हो रहा है, ठीक है। लोटस लाइक लार्ज आइज, उनकी आंखें कैसी हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। हाई नोज, लंबा नाक है। ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन ऑफ फोरहेड, इसका मतलब होता है फोरहेड और नोज एक ही लाइन में है, ठीक है। इन द फोरग्राउंड, सबसे आगे की बात की जाए, यमुना रिवर है शोन, आगे क्या दिखाई गई, यमुना रिवर दिखाई गई है। ए फ्यू स्मॉल ट्रीज इन द सेम हाइट विद डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स आर ड्रॉन ऑन द राइट। अच्छा, अब फोरग्राउंड की बात करते हैं, जहाँ पे एक गोपी के हाथ में फैन है, उसी के साथ में हमें एक डार्क कलर में छोटा सा पौधा दिख रहा है। जो ट्री है छोटी सी हाइट का ही है, लेकिन उसकी शेप और लीव्स को देखा जाए, ठीक है, तो बड़ा अच्छा सुंदर दिख रहा है। द वाइब्रेंट होते हैं चमकदार, ऑरेंज कलर, ठीक है। जो वाइब्रेंट शाइन करने वाला ऑरेंज जो कलर है वो बैकग्राउंड में, ठीक है, दिखाया गया है, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि ऑरेंज कलर की वजह से ही ये जितनी फिगर्स है ये हाईलाइट हो रही है। So students, this is our painting, so very simple and easy to understand। तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करें, देखिए, समझें। और पहाड़ी चैप्टर में दो ही पेंटिंग है, एक हमने आज की है और एक हम इसके आगे वाली करेंगे, नंद यशोधन कृष्णा गोइंग टू किंग्समैन। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।